نہیں یہ میری سیٹ ہے. او ہو تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو؟ یہ سیٹ تو میری ہے. نہیں یہ سیٹ میری ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ؟ یہ تو میں نہیں چھوڑ. کس سے بٹھایا کس نے سیٹ پہ؟ تمہارا جو ہسبینڈ ہے نا وہ میرا بھی وہ اس کا بھی ہے. ہم دونوں کا. کس نے بٹھایا تم اس کو؟ یہاں کوئی نہیں بیٹھ رہا. یہ سیٹ میری ہے. میں باس کا سیکرٹری ہوں. انہوں نے مجھے بٹھایا ہے. لو اب ان کی کمی تھی یہ بھی آ. یہ سیٹ کی لڑائی ہے اس لیے یہ سیٹ میری ہے. میں وکیل ہوں اور یہ سیٹ میری ہے. کیا ہے میں یہ بیٹھوں گا سیٹ یہاں. ہے کس کی؟ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے باس نے کہا کہ یہ سیٹ تمہاری ہے. اس پہ تم بیٹھو گے. یہ سیٹ میری ہے. تم کہاں سے آ گئے بھائی؟ بھائی میں آ گیا. مجھے باس نے کہا تم اس سیٹ کو سنبھال لو. میں آ گیا. میں اپنی سیٹ کو سنبھالنے کے لیے آ گیا ہوں. کوئی بھی اب نہیں لے سکتا مجھ سے یہ سیٹ. دیکھتا ہوں کون. یہ سیٹ میری ہے. یہ سیٹ میری ہے. میری میں دیکھتا ہوں. میں بھی دیکھ لیتا ہوں کون. ارے بھائی یہ سیٹ میری ہے. صاحب نے بولا سیٹ میری ہے. صاحب نے مجھے بولا کہ ابے یار تم لوگ کیا سیٹ. تم لوگ جاؤ گھر پہ بیٹھ جاؤ. گھر سنبھالو. ارے یہ سیٹ میری ہے. ابے ادھر ہو جاؤ. یہ سیٹ میری ہے. بس میں نے بول دیا. آپ باہر نکلو. آپ جاؤ. میری سیٹ ہے. میں باہر کیوں نکلوں؟ آپ کون ہو؟ یار بیوی ہوں. آپ بھی بیوی ہو. آپ بھی باہر نکلو. میں صاحب نے مجھے کہا کہ یہ سیٹ آپ سنبھالیں. ارے آپ باہر جائیں. اور آپ کیوں سامنے آ گئے؟ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں. زبردستی کی بات کر رہے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ سیٹ تیری ہے؟ میں بول رہا ہوں میں یہ سیٹ میری ہے. میری سیٹ ہے. میں نہیں جاؤں گا یہاں. میں نہیں جاتا. یار یہ فیصلہ صاحب کرے گا. اب صاحب کو فون ملا. صاحب کو فون ملا. ایک منٹ جی. بیل جا رہی ہے. ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں نا صاحب. یہ انہوں نے کیا لگایا ہوا ہے؟ وہ کہتا سیٹ میری ہے. یہ کہتا سیٹ میری ہے. وہ کہتی بیوی ہوں. کہ کیا ہو رہا ہے سر؟ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا. وہ وکیل مجھے پریشان کر رہا ہے. سر کہیں آپ میں کیا کروں؟ آپ مجھے بولیں. اچھا ہاں میڈم بیٹھی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے سر. کیا کہہ رہا ہے صاحب؟ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بیٹھو. میڈم کو بیٹھنے دو. ٹھیک ہے. اور آپ سب جو جاؤ. ہاں نکلو باہر. نکلو جاؤ. اور وکیل آپ بھی باہر جاؤ. میں باہر نہیں جا رہا. میں یہیں بیٹھوں. جی میڈم آپ فرمائیں. کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے میڈم. اوکے میڈم. ٹھیک ہے میڈم. اوہو اور بیٹا تم بھی آئی ہو ڈھولو کے ساتھ. کہاں گھوم رہی ہو؟ یہ قانون ہے. اور قانون یہ ہے کہ جو سیٹ ہوتی ہے وہ صرف چیئرمین کی ہوتی ہے. اور چیئرمین کے بعد اگر اس کا حق ہے تو اس کی بیگم کو یا وہ جس کو جانشین بنائے. لیکن مرنے کے بعد تو بیگم صاحبہ یہ سیٹ آپ کی اس وقت ہوگی جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا. اس کے بعد یہ سیٹ آپ کی ہے. لیکن ابھی یہ سیٹ میری ہے کیونکہ میں زندہ ہوں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیٹ جو ہے مین مرکزی وہ صرف چیئرمین کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. مرنے کے بعد وہ جسے جانشین منتخب کرے گا اسی پر اس کا حق ہوگا اور یا اس کی بیگم کا. لیکن وہ منتخب کرے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی لوگ ہیں وکیل ہے مینیجر ہے سویپر ہے یا اور کوئی بھی ہے ان کی اپنی وہ سیٹیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی سیٹ نہیں کیونکہ ان کی کارکردگی ان کی محنت پر ہی وہ سیٹ ان کو دی گئی ہے اور وہ اس سیٹ کے حقدار ہیں. وہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اور ساری بات ہوتی ہے محنت کارکردگی کی. صحیح محنت کرو گے تو سیٹ تمہاری رہے گی اور وہ سیٹ پہ مزید آگے ترقی دلا سکتی ہے. لیکن محنت پھر سیکنڈ سیٹ مل جائے گی آپ کو. لیکن محنت اول محنت ہی افضل ہے. اور محنت اللہ کو بھی پسند ہے اور محنت
उस शख्स को भी पसंद है जिसके लिए तुम काम करते हो। तुम काम करते हो उस शख्स के लिए, जॉब करते हो, तो जाहिर है तुम्हें उसकी सैलरी मिलती है, तुम्हें उसका हक मिलता है। लेकिन जब तुम काम अच्छा करते हो तो वो मालिक या वो शख्स जिसके पास तुम काम करते हो वो खुश होता है, और खुश होकर वो जो चाहे तुम्हें इनाम दे, या तुम्हें तरक्की दे, या तुम्हें सैलरी में इजाफा कर दे। तो ये सारी बात आती है मेहनत। मेहनत अफजल है, और आप सब लोग मेरे अपने वो लोग हैं जिन पर मैं फ़ख्र भी करता हूँ, और मुझे यानी कि तकब्बुर इस बात पर कि मेरे पास अच्छे लोग काम करते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो उसी लिए मैं आप सबको बहुत इज्जत देता हूँ। लेकिन सीट के बारे में मैं आपको बता दिया है मैंने कि सीट चेयरमैन की ही है, और उसके बाद वो सीट यानी वो हकदार होगा जिसको वो चेयरमैन मुंतखब करेगा, इसके अलावा कोई नहीं। आज के बाद मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए कि जो मुझे मिला था कि सीट मेरी है, सीट मेरी है, हर आदमी कह रहा था, तो ये अब नहीं होना चाहिए। अब रहा काम का मसला, तो वो आज जो हमें काम करने हैं और सबको मैंने जमा किया है या बुलाया है, तो ये वाज़ेह है कि क्या काम है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसी तरह से आपको वो काम अंजाम देना है जैसा कि तुम करते रहते हो, और इसी में मेरी इज्जत भी होती है और मुझे खुशी भी होती है, और आपकी मेहनत से मैं इनकार नहीं करूंगा। आप बड़ी जाफिशानी से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से काम करते हैं, मेरा दिल खुश होता है। और ये जब दिल खुश होता है तो यकीनन आपके लिए फिर कुछ ना कुछ इनाम भी रखता हूँ, चाहे कोई भी शक्ल हो, तरक्की भी दे सकता हूँ, इनाम दे सकता हूँ, कुछ भी हो। तो ये सारी बात है। अब तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम अपनी मेहनत के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, और बेगम साहब आप माशाअल्लाह आपकी बात अलग है। मैं जानता हूँ कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे अंदाज से निभाती हैं, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं अगर जिससे गैर हाजिर होता हूँ तो वो काम आप जिम्मेदारी से निभाती हैं, मुझे अच्छा लगता है, और ये बहुत फ़ख्र की बात है। मेरी जो कंपनी है इसमें बहुत से लोग काम करते हैं, आप लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और अपने अपने काम को अच्छी तरह अंजाम देते हैं। लेकिन उन लोगों में मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये निशानदेही की मेरे कुछ दोस्तों ने। मैं जब तक कंप्लीट तहकीकात नहीं करता उनका नाम शो नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को अपनी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये कंपनी हम सबकी है, सबको वही मेहनत करनी है जो मुझे करनी है, आपको करनी है, सबको करनी है। और अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो फिर जाहिर है कि वो मेरी कंपनी में नहीं होगा। अब आप कम करें, अगर कोई ऐसा बंदा है तो। हाँ जाहिर है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ, हो सकता है अपनी लाइन कुछ सही कर ले। मैं बड़ा मौका देता हूँ, मैं किसी को अलग नहीं करता, और ये मेरी फितरत है। मैं इंतजार करूंगा, तुम आना मेरे पास। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कंपनी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। 2-3 चेक आए हैं लेकिन मेरी अकाउंट में नहीं गए। तकरीबन 1.5 करोड़ का है, 50 लाख से ऊपर का है। समझ में नहीं आ रहा है ये
अकाउंट में अब तक गए क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं हुए? इसका मतलब है मुझे रिपोर्ट जो दी गई है वो सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे खास, जैसे कहते हैं ना आस्तीन के सांप, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मुझे। खैर वो ये सब पता चल जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। जब मैं सबका ख्याल रखता हूँ तो अल्लाह मेरा ख्याल रखेगा। जब मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ तो अल्लाह भी मुझे हर नुकसान से बचाएगा। करता हूँ कुछ, इसके लिए मुझे किसी एक को ये काम सौंपना पड़ेगा। तहसीन जी सर। देखो कुछ काम है, तो मैं सौंप रहा हूँ। बड़ी राजदारी से और बड़ी एहतियात के साथ इसको करने की जरूरत है। जी। कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरी कंपनी को और मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ लोग हैं ऐसे। ठीक है। तो उसको तुम खामोशी से, एहतियात से, बहुत राजदारी से करोगे कि वो कौन है, उनका कंप्लीट पीछा करो, रेकी करो, कब आते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, घर में कौन कौन आता है इनके, और किस किस से बातें करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं, इनके फोन ट्रेस करो, फोन पे किससे बात करते हैं, जब जाके ये काम मेरा होगा। लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात और राजदारी की जरूरत है। यहां तक कि मैं तुम्हें भी कहूंगा कि तुम जो भी बात देखो और मुझे जब बताओ तो खुद भी भूल जाना, क्योंकि मेरी कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। मेरे चेक खुरद-बुर्द हो रहे हैं और बहुत बारीकी से ही काम करना है। मैं किसी की इज्जत को खराब नहीं कर सकता। जो मेरे साथ कर रहा है जरूरी नहीं कि मैं उसके साथ उसी अंदाज से, गलीज अंदाज से निपटूं। मैं उसको खामोशी से काम करूंगा, पता चल जाएगा, खामोशी से उसको रवाना कर दूंगा, क्योंकि उसके साथ भी बच्चे हैं, घर है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ अजीब जहन का आदमी हूँ कि मेरी तरफ से कोई नुकसान में ना रहे। तो ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें मेरे इस काम को बहुत खामोशी से, एहतियात से और राजदारी से करना है। किसी को इल्म ना हो, बल्कि तुम्हें खुद अपने आप को इल्म ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं। बस मुझे ये बता देना, उसके बाद मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। अगर कुछ ज्यादा हुआ मेरे साथ तो फिर मैं दूसरे अंदाज से भी निपटना जानता हूं, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में अपनी कंपनी को नुकसान नहीं देख सकता। उसमें आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं अपना हक तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन हक सबका हक नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवियां हैं, उनके हुकूक हैं, उनकी जिम्मेदारी है, पूरा खानदान है, और फिर आप सब लोग हैं। आप भी मेरे खानदान की तरह हैं, तो मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। समझ गया मेरी बात? तो ये काम उसी अंदाज से करना है जिस राजदारी से मैंने तुमसे बात की है। किसी को इल्म ना हो, किसी को भी